Hello students. So this is last topic of your course of research methodology. That is the last part of unit 5. In unit 5 we have discussed about the importance of writing interpretation, and then we discussed about the general layout of research report, how research report should be written, what are various factors which should be included or considered while writing research report. Now this is last topic, that is the application of the research. So the application of research here we will discuss in terms of application in various functions of an organization. When I'm saying functions, it can be in finance, accounts is part of finance, it can be human resource department, it can be marketing department, then production department, then design department is there, research and development department is there, entrepreneur development cell is there. So all these are various functions or departments of organization, and in these area research is applied. So let's discuss in brief. So researches in management with regard to the primary focus or application of the research, we can categorize three different types of research in management. So the point here is, on the basis of application of research methodology in various organizations, it can be categorized into three types. The first type is theory building research. So what is theory building research? This kind of research is primarily aimed at developing management theories and by so doing improving our understanding and knowledge of management process. So one of the category of application of research could be developing a management theories. That is through research, through facts, management concepts are developed which will help for proper understanding. For example, Porter's 5 forces model if we consider, or if we consider the Maslow's hierarchy theory. So all these are concept building research. So first a model is prepared, then data is collected, applied, and recheck the model. Now this helps us to understand the concept and application of those models in society. So if you see, to develop a given model, first there is a research, and once research is approved, then only that model is used for application purpose, for implementation purpose. Next could be theory testing research. Theory testing research, this kind of research is primarily aimed at testing our theories of management. This testing involves the process of observations and measurements so as to be able to arrive at the decision as to whether or not or what part of theories can be rejected and which therefore can remain the final theories or hypothesis. For example, if there is a theory, or if there is a statement, or if there is a hypothesis that the amount of time
used in study is directly proportional to the marks obtained if this is the theory. For example, किसी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जितना ज्यादा टाइम हम पढ़ाई पे लगाएंगे उतना ज्यादा हमारे मार्क्स आएंगे. इफ दिस इज द थ्योरी, इफ दिस इज द स्टेटमेंट, और इन जनरल हम ये सोचते हैं या समझते हैं. तो हमने डेटा कलेक्ट किया, रिसर्च, हाउ रिसर्च इज गोइंग टू यूज टू टेस्ट दिस थ्योरी. तो हम क्या करेंगे, सैंपल लेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा यहां पे सैंपल, उनका कितना टाइम वो लगाते हैं पढ़ने के लिए और उनका रिजल्ट क्या आया. तो हो सकता है ऐसे कुछ फाइंडिंग आए कि टाइम के अलावा कंसंट्रेशन इज अनदर फैक्टर विच इज मस्ट टू हैव हायर स्कोर. क्योंकि ऐसा भी ऑब्जर्वेशन हो सकता है कि जिसने ज्यादा टाइम लगाया उसका मार्क्स कम है, जिसने कम टाइम लगाया उसका मार्क्स ज्यादा है. ऑफ कोर्स देयर may be a direct relationship with the time and score, time and marks, but at the same time some other factor could also be responsible for higher marks. So this kind of theory, if there is a statement or this kind of theory can be tested by the process of observation and measurement, and conclusion can be drawn which theory is correct or which theory is incorrect. Then one more category is problem-centered or practical research. Problem-centered or practical research. So these above two categories are theory building research or theory testing research, but this is one of the category which is most widely used in any organization. This is a problem-centered or practical research. This type of research is primarily aimed at investigating a practical problem, question, or issue in a specific organization or management context with a view to resolve the problem and subsequently making recommendation for the courses of action. So the problem-centered or practical research is very simple. There is a problem in hand with the organization and the organization want to resolve this. So the research done to resolve such kind of problem is problem-centered or practical research. तो ये तीन तरीके की कैटेगरी हो सकती हैं. Now इन तीन कैटेगरी के बेसिस पे एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च होगा. सम ऑफ द रिसर्च आर एकेडमिक ओरिएंटेड, जहां पे हम किसी थ्योरी को बिल्ड कर रहे होंगे या किसी पर्टिकुलर थ्योरी को एस्टैब्लिश थ्योरी को टेस्ट कर रहे होंगे, या हमारे पास पहले से प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री कैटेगरीज there will be application of research. So for understanding application of research, the management is categorized into broad areas, that is marketing, finance, HR, human resource, production, and entrepreneurship. And we will analyze what could be the possible scope of research in specific areas. Let's discuss about research in marketing. So these are some of the areas of research in marketing. Marketing is one of the largest area which have the largest scope of research and application of research. So let's discuss some of them. Research on formation of marketing strategy, research on marketing and reach of the competitors, research for market development, risk management on collaboration, promotional research, sales research, customer research, product research, survey on demand, market research, decision making.
आपका जो मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो कोर्स है उसके सिलेबस या उसके जो कंटेंट है, हर एक कंटेंट पे रिसर्च होगा। चाहे वो आप एडवर्टीजमेंट की बात करें, और एडवर्टीजमेंट में भी विच काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट, बैनर पोस्टर लगाने वाला है या टीवी एडवर्टीजमेंट है या प्रिंट मीडिया के थ्रू हो रहा है या ऑनलाइन हो रहा है या सोशल मीडिया का यूज हो रहा है, स्पेसिफिक एप्लीकेशन, केवल एडवर्टीजमेंट के अंदर ही बहुत सारे स्कोप ऑफ रिसर्च है। इसी तरीके से सेल्स प्रमोशन के ऊपर, इसी तरीके से प्रोडक्ट की प्राइसिंग के ऊपर, प्रोडक्ट के प्रमोशन के ऊपर, प्रोडक्ट की पैकेजिंग के ऊपर, प्रोडक्ट के कलर के ऊपर, कस्टमर रीच के ऊपर, कस्टमर फीडबैक के ऊपर, एन नंबर ऑफ एरियाज आर अवेलेबल टू डू रिसर्च और अप्लाई रिसर्च मेथोलॉजी इन मार्केटिंग। बिकॉज अगर प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो कंपनी अर्न कैसे करेगी, और प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो जो चीजें करनी पड़ेंगी वो सभी के सभी रिसर्च है। इसलिए स्पेशलाइजेशन का एक पार्ट है मार्केटिंग रिसर्च, इज वन ऑफ द स्पेशलाइजेशन अंडर मार्केटिंग हेड। सो दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च इन मार्केटिंग। नेक्स्ट वन इज फाइनेंस। तो अगर इन जनरल और इन टोटलिटी हम फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंसिंग कैसे करना है, फाइनेंसिंग के सोर्स क्या होंगे, सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होगा, इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज क्या है, इन्वेस्टमेंट के सोर्स क्या है, डिविडेंड की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, डिविडेंड कब देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, व्हाट शुड बी रिस्क, व्हाट शुड बी रिटर्न, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपेम, हर एक पैरामीटर पे रिसर्च मेथोलॉजी का यूज होगा। So research on investment pattern, preference of retail investors, research to assess the perception of mutual fund investors, not necessarily mutual fund, it could be research to assess the perception of mutual fund investor or a stock market investor or debt fund investor or real estate investor or gold investor। तो कोई भी टाइप का इन्वेस्टमेंट हो रहा हो, कोई भी टाइप का इन्वेस्टर हो, हर एक के लिए उनके परसेप्शन को स्टडी किया जा सकता है। देन स्ट्रेटजीज फॉर टैक्स सेविंग, ये भी एक रिसर्च है। फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज, है ना, फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज हो सकता है या फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ सैलरीड एम्प्लॉयज हो सकता है। सो दैट कुड बी अ रिसर्च। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस मींस ऑर्गेनाइजेशन ने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, ऑर्गेनाइजेशन ने इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकता है, इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट किसी और शेयर में, इन्वेस्टमेंट अपने ही बिजनेस के एक्सपेंशन में, और उन इन्वेस्टमेंट के थ्रू रिटर्न कैसा आ रहा है। सो दैट इज इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। देन रिस्क परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू फाइनेंस, फाइनेंसिंग करना है, व्हाट कुड बी द सोर्स ऑफ फाइनेंस, कौन से पर्टिकुलर बैंक से हमें फाइनेंस करना चाहिए, क्या हमें पब्लिक ऑफरिंग पे जानी चाहिए, पब्लिक ऑफरिंग हो गई है तो क्या हम फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग पे जाएं। सो डिसीजन मेकिंग, क्या जो हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा है, सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसका डिसीजन लेंगे कि जो हमारे पास प्रॉफिट बचा है उसको बफर में डालें, उसको डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, या उसको फर्दर एक्सपेंशन या न्यू इन्वेस्टमेंट में यूज किया जाए। दैट इज अ डिसीजन मेकिंग। सो दैट इज ऑल्सो स्कोप ऑफ रिसर्च। Then financial crisis management. What if there is a financial crisis? Financial crisis management. Like Yes Bank जो भी फेस कर रहा है, PNB ने फेस किया था, विजय माल्या के जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, यूबी ग्रुप, वो फाइनेंशियल क्रंच को फेस किया। किंगफिशर एयरलाइंस जो फाइनेंशियल क्रंच को फेस किया, शायद वो फेस ही नहीं कर पाया। सो दैट इज अ फाइनेंशियल क्राइसिस मैनेजमेंट। दैट इज ऑल्सो स्कोप ऑफ रिसर्च। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो बनाना ही एक टाइप का रिसर्च है। पोर्टफोलियो मतलब एक मेरे पास इन्वेस्टमेंट के अलग अलग अपॉर्चुनिटीज हैं, तो मेरे पास जो अमाउंट है वो कुछ अमाउंट मैंने शेयर में डाला, कुछ म्यूचुअल फंड में डाला, कुछ बैंक में एफडी कर दिया, कुछ पोस्ट ऑफिस में डाल दिया, कुछ का रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, कुछ का गोल्ड इन्वेस्टमेंट कर दिया। दैट इज माई पोर्टफोलियो।
तो मैं इस पोर्टफोलियो को बनाने के लिए ही मुझे बहुत सारा रिसर्च करना पड़ेगा कि अगर मुझे एफडी करना है तो कितने साल का करना है, अगर मुझे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो कितने अमाउंट करना है और कौन सी कंपनी का शेयर खरीदना है। देन रेशियो एनालिसिस, किसी भी कंपनी के परफॉर्मेंस को जब इवेल्युएट करते हैं, परफॉर्मेंस एनालिसिस करते हैं, तो वन ऑफ द मेथड इज रेशियो एनालिसिस। सो फॉर रेशियो एनालिसिस यू हैव टू कलेक्ट डेटा। उस डेटा को कलेक्ट करेंगे, उसका एक मॉडल बनाएंगे, उसका रेशियो निकालेंगे। रेशियो बहुत सारे टाइप के होंगे, तो कौन सा लिक्विडिटी रेशियो निकाल रहे हैं, या पी रेशियो निकाल रहे हैं, या एबिटा रेशियो निकाल रहे हैं। तो रेशियो एनालिसिस इटसेल्फ इज a big research. Capital budgeting. Every year, every organization does capital budgeting. कि what are various source of capital, और इस limited capital को हम कैसे allocate करें। हर एक डिपार्टमेंट को कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। मटेरियल डिपार्टमेंट को जरूरत पड़ेगी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जरूरत पड़ेगी, डिजाइन डिपार्टमेंट को जरूरत पड़ेगी, एचआर डिपार्टमेंट को जरूरत है। तो जो बजटिंग है दैट इज ऑल्सो रिसर्च। देन ब्रेक इवन एनालिसिस, एक नया प्रोडक्ट है, उस नए प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट हुआ है, उसका ब्रेक इवन एनालिसिस करना है। कब जाके हम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, कितनी क्वांटिटी सेल होने के बाद प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, व्हाट कुड बी द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कि हम ब्रेक इवन पे जल्दी पहुंचे। सो ऑल दीज आर स्कोप ऑफ रिसर्च। तो जो भी आप रिसर्च रिपोर्ट के लिए जो भी टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हो, ऑल आर स्कोप ऑफ रिसर्च। वो हो सकता है आपका एचआर से हो, फाइनेंस से हो, मार्केटिंग से हो, प्रोडक्शन से हो, सिस्टम से हो। सो हर एक पैरामीटर स्कोप ऑफ रिसर्च। अगर मैं नटशेल में बोलूं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उस सब्जेक्ट का जो भी सिलेबस है, उस सिलेबस में जो भी कंटेंट है, हर एक कंटेंट रिसर्च का एरिया है। तो जैसे अगर आप ये टॉपिक देख रहे होगे, ये खुद एक रिसर्च, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपके पास फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन है, कैपेम मॉडल है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, फंड फ्लो एनालिसिस है, कैश फ्लो एनालिसिस, ऑल आर स्कोप ऑफ रिसर्च। नाउ विल मूव टू एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च इन एचआर, ह्यूमन रिसोर्स। बिना देखे आपको लिखना है यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स में क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है। रिसर्च किस किस एरिया में किया जा सकता है ह्यूमन रिसोर्स में। ह्यूमन रिसोर्स के जितनी एक्टिविटी है, हर एक एक्टिविटी में रिसर्च किया जा सकता है। चाहे आप वो रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हो, सिलेक्शन की बात कर रहे हो, या इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात कर रहे हैं, टीम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, लीडरशिप की बात कर रहे हैं, या कैरियर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वर्क लाइफ बैलेंस की बात कर रहे हैं। किसी भी टॉपिक में आप एचआर के किसी भी टॉपिक पे लोगे, हर एक टॉपिक पे रिसर्च किया जा सकता है। इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर रिसर्च किया जा सकता है, पर्सनालिटी के ऊपर रिसर्च किया जा सकता है, ग्रुप बिल्डिंग पे रिसर्च हो सकता है, लीडरशिप पे रिसर्च हो सकता है, कम्युनिकेशन स्किल पे रिसर्च हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इज अ एरिया ऑफ रिसर्च, स्ट्रेस मैनेजमेंट इज एरिया ऑफ रिसर्च। सो लेट्स डिस्कस सम ऑफ देम। कंपैरेटिव अप्रोच, like here we are discussing some of the point. Comparative approach, research on statistical approach, management by objective approach, conflict management, problem identification, leadership style, performance appraisal system, administrative roles, labor welfare study, manpower planning, recruitment, training and development। इसके अलावा जो भी आप एचआर में पढ़ते हो, हर एक स्कोप ऑफ रिसर्च है, हर एक में हर एक एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च है। चाहे मैं इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात कर रहा हूं, या वर्क लाइफ बैलेंस की बात कर रहा हूं, या सैलरी सिस्टम की बात कर रहा हूं, कोई भी आप टॉपिक लाएंगे वो सभी के सभी एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च उस पर्टिकुलर एरिया का हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, तो बिना देखे अगर मुझे बोलना है, तो जो फॉर्म में आप जो चीज पढ़ रहे हो, है ना, फॉर्म में इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात कर रहे होगे, या प्लांट लेआउट की बात कर रहे हैं, या मे बी जो भी टॉपिक है, एफिशिएंट मशीन की एफिशिएंसी की बात कर रहे होंगे, कोई भी टॉपिक होगा, हर एक टॉपिक जो है वो एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च होगा इन प्रोडक्शन। लेट्स डिस्कस सम ऑफ देम। ऑपरेशन मॉड्यूल फॉर प्रोडक्शन एंड सेल्स सिंक्रोनाइजेशन, strategic module for overall production and distribution,
new technology approach, studying the competition. Undertaking research can help in company avoid future failure. In-house research is required for professional and self-development of workers through training and mentoring. Guaranteeing adequate distribution, prototype development, testing new product, planning, सप्लाई चेन मैनेजमेंट. तो ये तो बहुत लिमिटेड है. और भी बहुत सारे एरिया हैं, जैसे मैंने बताया कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे कर सकते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे जहां पे डिस्कस किया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे कर सकते हैं, सप्लायर्स के ऊपर कर सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे कर सकते हैं, टाइम स्टडी पे किया जा सकता है, मोशन स्टडी पे किया जा सकता है, शिफ्ट परफॉर्मेंस पे किया जा सकता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे किया जा सकता है, प्रोडक्ट के रिजेक्शन पे किया जा सकता है, प्रोडक्ट की फेलियर पे किया जा सकता है. तो जो भी आपने मटेरियल मैनेजमेंट में या प्रोडक्शन में जो भी चीजें आपने पढ़ी, वो सारा का सारा एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च इन प्रोडक्शन. एक और देख लेते हैं, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च इन एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप इन लास्ट 5 to 10 ईयर्स में इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस आ रहा है. तो एंटरप्रेन्योरशिप किस तरीके से बिल्ड करें, एंटरप्रेन्योर्स को कैसे बिल्ड करें, इसलिए हर इंस्टीट्यूट में नाउ हर ऑर्गेनाइजेशन में एक ईडी सेल आ रहा है. सो ईडी पे जो भी रिसर्च किया जा रहा होगा कि स्टार्टअप कैसे होना चाहिए, या स्टार्टअप को कैसे क्रिएट कर सके, फंड कैसे अरेंज कर सकते, आइडियाज कैसे जनरेट करें, आइडियाज को मर्ज कैसे करें, कोलैबोरेशन कैसे करें, ऑल दीज आर एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च इन ईडी. सम ऑफ देम आर सोशल कल्चर and practices to utilize the opportunities. गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन पे रिसर्च किया जा सकता है कि हाउ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ गवर्नमेंट इज गोइंग टू एनहांस और इंक्रीज द कैपेबिलिटी ऑफ ईडी सेल. इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिलेटेड टू ईडी. कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कहां से आएगा, फंड कहां से आएगा, और इन्वेस्टमेंट कब करना है, प्लांट लेआउट कैसे होगा, ऑल दीज आर एरिया ऑफ रिसर्च. Differentiation from others here means differentiation in terms of the already existing products or already existing implementation of ideas. How to differentiate a given product or idea with respect to already available in the market. That could be a research. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. सो इसका जो सेकेंड पार्ट हो सकता है, दैट इज द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ द अवेलेबल और एग्जिस्टिंग फैसिलिटी, उसके कंपैरिजन में न्यू आइडियाज के क्या एडवांटेज होंगे. देन एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स और सब्स्टिट्यूट्स, डाइवर्सिफिकेशन एंड रिवर्स स्ट्रेटेजी, बैरियर्स इन स्टार्टअप. सो ऑल दिस कुड बी स्कोप ऑफ रिसर्च अंडर एंटरप्रेन्योरशिप. तो जो भी आपने ईडी में पढ़ा है, वो सारे जो भी टॉपिक आप ईडी में पढ़ रहे हो, वो सारे टॉपिक स्कोप ऑफ रिसर्च है. तो जब भी एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च आए किसी भी फंक्शन में लिखने के लिए, तो बहुत आसान है. आप उस सब्जेक्ट में जो जो चीजें पढ़े हो, उन सभी चीज को अगर आप लिख दोगे, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का या उस पर्टिकुलर फंक्शन का वो एरिया ऑफ रिसर्च हो जाएगा. आई होप ये मीनिंगफुल रहा. किस तरीके से इसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से आपको आंसर करना है, दिस कुड बी वन ऑफ द फॉर्मेट जिसके बेसिस पे आप आंसर कर सकते हैं. तो यहां पे हमारा सिलेबस खत्म हो जाता है. नाउ इफ टाइम परमिट्स, आई विल गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड सॉल्व न्यूमेरिकल्स more and more so that you get more and more practice. So I hope you like the videos. If you have any doubt, please give feedback. Thank you.